Hello students, Jainacharya Sri Ajramar Vidyadham. Welcome back to online study. Standard 4th Subject Environment, Chapter 22 Patola. Part 2. From thread to cloth, the thread is which are used to weave. Patola is made from mulberry silk, which is white. Father brings this silk thread from outside. The thread are open and made into a grid. After that design is made on that designed thread is tied thereafter, which is called बांधनी वर्क. बच्चों, मैंने आपको पार्ट 1 में बोला था कि कैसे बुनाई होती है. तो थ्रेड जो है वो पहले से ही कैसे होते हैं, डिज़ाइन किए हुए होते हैं, फिर उसके ऊपर बुनाई होती है. The part which has to be dyed is kept open and according to measurement it is dyed and tied up again. This work is hard and time consuming. When grid is designed and finished dyeing, after that it is put up on the handloom for weaving. Hence, after the hard work of 4 to 6 months, ये जो है वेविंग करना ये बहुत हार्ड है. ये 4 से 6 महीने तक इसकी बुनाई चलती है. तो कभी कभी तो इसका जो है ये 1 ईयर तक भी उसकी ये बुनाई चलती है. ब्यूटीफुल एंड कलरफुल पटोला इज़ प्रीपेड. और सुंदर पटोला रेडी होता है. द ग्रीड इज़ फास्ट कलर. उसके कलर कैसे होते हैं? फास्ट होते हैं. उसके कलर भी महंगे आते हैं जो, और सिल्क थ्रेड है वो भी महंगे आते हैं. इसीलिए क्या होता है, जो ये पटोला है उसकी कीमत भी ज़्यादा हो जाती है. सो देर इज़ नो चांस ऑफ वॉशिंग आउट ऑफ कलर ऑफ पटोला. इसके कलर डार्क और फास्ट होते हैं, तो उसके धोने के बाद भी इसके कलर जाते नहीं हैं. कोई जो वो रहता है कपड़ा, तो उसमें क्या होता है कि धोने के बाद कपड़ा अगर चल जाता है या तो कलर जाते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं होता है. Why it is a saying in Gujarati that ગુજરાતીમાં કોઈકે કહ્યું છે કે પાડી પટોલે ભાત ફાટે પણ ફાટ નહીં, ફાટે પણ ફીટે નહીં. ફાટી જાય પણ એમાં કરેલી ભાત ક્યારેય જે ધારો કે वर्क हमने किया हुआ होता है तो वो वर्क चला जाता है. भात एटले डिज़ाइन, उसमें की हुई डिज़ाइन कभी मिटती नहीं है. हैंडीक्राफ्ट इन डेंजर इज इन डेंजर. इन द प्रिपरेशन ऑफ पटोला, केयर एंड पेशेंस आर रिक्वायर्ड फॉर द स्किल ऑफ weaving, designing and dyeing. It is a hard work of many days. Mulberry silk and colors are very costly, so patola are sold at very high cost. Earlier there were 700 families connected with this handicraft, but now only 3 families are trying to keep this handicraft alive. पहले 700 फैमिली थी, बट अभी 3 ही फैमिली ऐसी बाकी रह गई है जो इसके ऊपर वो हैंडक्राफ्ट करती है. मैनी पीपल हैव लेफ्ट दिस ऑक्यूपेशन. बहुत सारे पीपल ने ये छोड़ दिया है क्योंकि इतने महंगे होते हैं कि कोई जो इसका ये
जो राजघराने के लोग पहनते, तो ये सामान्य मनुष्य नहीं पहन सकते, तो ये उतनी बाजार में कीमत नहीं मिलती थी। पटोला इज प्रेशियस एंड यूनिक आइडेंटिटी ऑफ एंशियंट heritage and Indian culture. It is going to be vanished. For that, we have to give good price of patola and help the kasabis. क्या बोलते हैं? kasabis. Otherwise, this precious art will be vanished. Next page. Will Moksha and Nirmal be able to teach their children this beautiful art? ये क्वेश्चन पे हमें डिस्कस करना है। तो ये जो मोक्षा और निर्मल है, वो ये ब्यूटीफुल आर्ट जो अपने बच्चे को दे सकेंगे क्या उसके साथ ये कर सकेंगे? केयर, पेशेंस एंड हार्ड वर्क आर रिक्वायर्ड फॉर द स्किल of weaving, designing and dyeing patola. It takes hard work of many days. Mulberry silk and colors are very costly, so patola are sold at very high cost. So the number of people who buy patola are less due to ever changing fashions. The craze for patola has also decreased a lot. Therefore, there are only 3 families left out of the previous 700 families who still practice this art. I think that instead of teaching this beautiful art to their children, Moksha and Nirmal will turn them towards some other business and live livelihood. Write in your notebook. ये क्वेश्चंस के आंसर आप रीड करके फिर क्या करोगे आप कि अपने ओन से चर्चा करनी है। अभी नीचे फाइंड आउट एंड राइट, टॉक अबाउट a blacksmith, a carpenter and a potter about the nature of their work. So, my friends and I talked to a blacksmith, a carpenter and a potter about the nature of their work. It was as follow. Blacksmith उसने क्या चर्चा की तो वो भी आप कौन से, बट मैं आपको शॉर्टली बोल दूँ कि उसने उसके जो टूल्स थे कि वो क्या करते थे, उसके मेन टूल क्या थे, तो वो कैसे वर्क करते थे, उन सब की चर्चा की। सेम टू सेम कारपेंटर और पोटर जो है उसकी भी उसने ऐसे ही डिस्कशन किया। तो ब्लैकस्मिथ है, अ ब्लैकस्मिथ मेक वेरियस थिंग्स लाइक प्लग, स्पेड्स, एक्सिस, crowbars, sickles, tongs, scissors, knife, daggers, roasting spoons, etc. from iron. Anvil, hammer, tongs, chisel, scissor, sieve, bellow, etc. are his main tools. Now, carpenter. A carpenter makes various things like window, furniture, doors, stool, chair, table, cupboard, bed, etc. from wood. So carpenters plan, chisel, hammer are his main tools. वैसे पोटर जो है वो भी वेरियस टाइप्स ऑफ थिंग्स बनाता है, मतलब कि मिट्टी में से
ऐसे ऐसे थिंग्स वो बनाता है। तो अभी हम नेक्स्ट पेज में जाए तो नेक्स्ट पेज में भी आपको ये टेबल दिया हुआ है नीचे ब्लू एंड येलो कलर का। तो उसमें आपको क्या करना है, काइंड ऑफ वर्क नीचे दिया हुआ है। नेम ऑफ पीपल यू नो हु डू दिस वर्क, कौन वो वर्क करता है, और फ्रॉम वेयर डिड दे लर्न दिस वर्क, और ये आपको इधर लिखना है। क्लोथ्स वेविंग, तो वो मोक्सा एंड निर्मल्स पेरेंट्स किसके लिए करते हैं, तो फ्रॉम देयर एल्डर, ये वर्क उसने कहाँ से सीखा, ये आपको इधर दूसरे बॉक्स में लिखना है। कुकिंग, तो सुजाता एंड मनहर भाई, और कहाँ से सीखे, तो मदर एंड ग्रैंडमदर। तो ये भी आप अपने ओन से कर सकते हो कि ड्राइविंग बस, तो वो ड्राइविंग स्कूल में सीखते हैं, तो ये भी आप लिख सकते हो। आपको समझ में आ ही गया है। तो ये जो कटिंग हेयर है, तो नरेश भाई या नरसी भाई, और वो कहाँ से सीखे, तो कि उसके रिलेटिव के पास से सीखे। फिर फार्मिंग है, तो दलपत भाई या तो कांजी भाई फार्मिंग करते, तो वो कहाँ से सीखे, तो कि अपने फादर और ग्रैंडफादर के पास से सीखे। फिर मेकिंग काइट्स, तो इमरान या इब्राहिम है, तो वो किसके पास से सीखा, तो ओल्डर अंकल और फादर के पास से भी सीखा। मेकिंग शूज़, तो सुरेश भाई है, वो अपने अंकल और फादर के पास से शूज़ बनाने के लिए सीखे। सिंगिंग, लता मंगेशकर है, तो फ्रॉम हिज फादर, उसके फ्रॉम हर फादर, तो वो भी उसके पापा के पास ही सीखे थे। फिर सिविंग एंड एम्ब्रॉयडरी, निर्मला देवी, तो वो भी अपने एल्डर के पास से सीखी है। तो बच्चों यहाँ पे आपको अपने ओन से भी लिख सकते हो, और मैं बोली वो भी आप लिख सकते हो। तो आपको ये लेसन समझ में आ गया है। पटोला के बारे में हमने सीखा, जाना, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली। आपको ये लेसन समझ में आ गया है। इसमें जो क्वेश्चंस है वो आप अपने ओन से भी लिख सकते हो, तो इसीलिए मैंने नहीं लिखे हैं। तो आप अपने ओन से टेक्स्ट बुक के अंदर पेंसिल से लिख लेना। अभी न्यू लेसन के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।